Good morning, students. Today we are going to do outbreak of French Revolution. You have already done the situations which ultimately led to the outbreak of revolution. The first and the most important thing was the despotic rule of Louis XVI. Louis XVI was a despotic ruler. He was always involved in his luxurious life and never cared about the people of France. Then the division of the French society. The French society was divided into three states, that is the clergy, nobility and the remaining population. The first two states were not paying any kind of a taxes. It is only the third state which was paying taxes not only to the government but also to the church. They were also paying the taxes in the form of indirect tax, like if they were purchasing the essential commodities at that time also they were paying the tax. Then the subsistence crisis. The French population rose enormously by 1789. In 1715, it was just 23 million, but by 1789 it rose to 28 million. Uh, it rose to 28 million, and this led to rapid increase in the demand for food grains. Production of food grains could not keep pace with the need of the society, and it was the king also did not pay any kind of attention. As a result, there was a scarcity of food grain, and the prices of the bread became so high that it became impossible for the peasants and the workers and other poor sections of the society to purchase it. As a result, even the survival became very difficult for the poor section of the society by 1789. Then the inspiration of philosophers like John Locke, Jean-Jacques Rousseau, and Montesquieu propagated the ideas of having a society where people would enjoy freedom, equal laws, and equal opportunities. Their ideas inspired the people of France to realize their dream. Then the role of middle class. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed as middle class, who earned their wealth through an expanding trade of the manufactured goods. There were other professionals also, like lawyers, doctors, administrative officials. They believed that no group in the society should be privileged by birth. People should get respect in the society as per their merit. So these were some of the causes which ultimately led to the outbreak of revolution. अगर हम बात करें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या कारण थे, तो अगर ब्रीफ में हम देखें तो सबसे बड़ा कारण तो लुइस 16 थे. लुइस 16 जो थे बहुत वो उन्हें फ्रांस की जनता किस तरह की परेशानियां झेल रही हैं उससे कोई मतलब नहीं था. वो अपनी रानी के साथ एक लग्जीरियस लाइफ जीते थे, और बाहर में जो ब्रिटिश के साथ लड़ाई उनकी कॉन्टीन्यूअसली रही, और लड़ाई को लड़ने के लिए वो जो है प्राइवेट लोगों से लोन भी लिया करते थे, और उस लोन पे भी इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ता था. फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो भी बहुत अनइक्वल थी, बहुत डिस्क्रिमिनेशन था. जो फर्स्ट टू स्टेट्स थे, नोबिलिटी और क्लर्जी, जो रिच थे, जिनके पास ऑलमोस्ट 60% फ्रांस का जो लैंड था जो वो एक्वायर करते थे, लेकिन वो दोनों ही क्लर्जी और नोबिलिटी जो है वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे. सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर्स ही टैक्स देते थे, ना सिर्फ सरकार को बल्कि चर्च को भी. यहाँ तक कि अगर वो कुछ कमोडिटी खरीदते थे, कोई सामान भी खरीदते थे ज़रूरत की, तो उसमें भी उन्हें इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था. इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बना वो था सबसिस्टेंस क्राइसिस. एक ऐसी स्थिति 1789 के दौरान फ्रांस में उत्पन्न हो गई कि जब लोगों का सर्वाइवल भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया. फ्रांस की पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ी, उस हिसाब से जो है वहाँ का फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ा. चूँकि फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, इसीलिए लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड भी नहीं था. ब्रेड का जो रेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कॉमन पीपल उसे ख़रीद नहीं सकते थे. इंस्पिरेशन ऑफ फ़िलासफ़र्स. उस टाइम में बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स जो हैं उनकी बातों ने भी लोगों को इंस्पायर किया. ख़ास करके इसमें 3 नाम जो आते हैं वो जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो और मॉन्टेस्क्यू का आता है. प्रिंटिंग प्रेस उस समय
ऑलमोस्ट हर जगह आ गई थी और लोग उनके बुक्स को पढ़ते थे और उनके बुक्स को पढ़ के उन लोगों के मन में इक्वालिटी की भावना, लिबर्टी की भावना, इक्वल अपॉर्चुनिटी की भावना आ गई थी। अब वो लोग जो हैं ये पुरानी बातें, पुरानी चीज़ों को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते थे, जहाँ पे लोग प्रिविलेज बाय बर्थ एंजॉय करते थे। अब उन लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट से कि क्यों सिर्फ हम टैक्स दें और क्लर्जी और नोबिलिटी टैक्स नहीं दें, क्यों उनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ ही मिल रहा है। और लास्ट था रोल ऑफ मिडिल क्लास। जो 18th सेंचुरी थी उस समय काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह का काम बढ़ा, लोग एक जगह से दूसरी जगह मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे और उस समय में एक नया ग्रुप इमर्ज होकर आया जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं। इस ग्रुप के लोग पढ़े लिखे भी थे और औरों की तुलना में जो हैं इनके पास अच्छा खासा वेल्थ भी था और ये लोग अब पुराने दकियानुसी विचारों को मानने वाले नहीं थे। ये सरकार से जो है वो सरकार के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। जैसे कि हम लोगों ने बात की कि we just keep when Louis XVI, in your previous video you must have seen that when Louis XVI became the emperor, at that time he found the empty treasury. Now the treasury was empty because of the faulty taxation system, because of the continuous war with the British, and also because of the extravagant life. But the king thought that the best way to sort out this problem was to increase the taxes. Now it was not for increasing the taxes in France, it was mandatory to call the meeting of General Assembly, and when it is passed from the General Assembly meeting, then only taxes could be increased. So what the king did, that on 5th May 1789 he called for the State General meeting. Now State General was a political body to which the 3 states sent their representative. ये एक political body थी जिसमें हर state के लोग अपने representatives को भेजते थे और इन्हीं के voting के आधार पे ही जो है टैक्स बढ़ाया जाता था। स्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई, when the state general meeting was conducted on 5th May 1789, each state sent their representative. The first state, clergy, sent 300 representatives. The second state, nobility, they also sent 300 representatives. But third state sent 600 representatives because they were consisting almost of 90% of the French society. But these 600 representatives were those people who were educated and prosperous. जब ये मीटिंग कंडक्ट की गई, स्टेट जनरल की मीटिंग जब 5 मई 1789 को लुईस 16 ने कंडक्ट की, तो इसमें फर्स्ट स्टेट के लोगों ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, सेकंड स्टेट के लोगों ने भी अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, लेकिन थर्ड स्टेट का जो है अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, क्योंकि वो 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन इसमें हमें ये बात याद रखनी है कि इन 600 लोगों में कोई भी पीजेंट या आर्टिशियन या वुमेन नहीं था। ये वो लोग थे जो प्रॉस्पेरस थे और जो एजुकेटेड थे, जो रिच अपर मिडिल क्लास के लोग थे। फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली, व्हाट अल्टीमेटली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, एंड इन द प्रीवियस स्लाइड वी टॉक्ड अबाउट द जनरल असेंबली। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि जनरल असेंबली जो है वो बदल के बाद में जो है एक नेशनल असेंबली भी फॉर्म हुई। The voting in the state general in the past had been conducted according to the principle each state had one vote. हमेशा से ही स्टेट जनरल की जो मीटिंग होती थी तो वहाँ पे एक स्टेट को एक वोट होता था, और जाहिर है जब एक स्टेट को एक वोट होता था तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, दे ऑलवेज सपोर्टेड द demand of the king. They were always in the favor of king, because even if the taxes when the taxes are going to be increased, it is not going to make any difference in their life because they don't have to pay, है ना। जब भी राजा जो है टैक्स बढ़ाने की बात करते थे तो ये हमेशा राजा को सपोर्ट करते थे, क्योंकि इन्हें टैक्स नहीं देना होता था। और वहाँ पे चलता क्या था, एक स्टेट को एक वोट देना होता था।
Members of the third state demanded one person, one vote. When king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. लेकिन थर्ड स्टेट का क्या डिमांड था? थर्ड स्टेट वो लोग जो लोग पढ़े लिखे थे, प्रॉस्पेरस थे, जो जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित थे, उन्होंने कहा कि नहीं, एक पर्सन को एक वोट होना चाहिए, वन पर्सन वन वोट, ये उनका डिमांड था। और जाहिर है कि किंग ने उनकी डिमांड को नहीं माना, और जब उन्होंने उनकी डिमांड को नहीं माना तो वो लोग बहुत नाराज़ हो गए और वो वहाँ से उठकर चले गए। On 20th June 1789, the representatives of third state assembled in the ground of Versailles. वो एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया। खुद जनरल असेंबली ना करके उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर किया? नेशनल असेंबली। और उन्होंने ये प्रण किया कि दे आर गोइंग टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड ऑल्सो लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। वो लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम अपने फ्रांस के लिए एक संविधान ना बनाए। और उन्होंने ये भी निर्णय किया कि वो राजा के पावर को जो है अब लिमिट कर देंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो और भी बहुत सारे इवेंट साइमल्टेनियसली चल रहे थे, जिसमें से एक बहुत बड़ी घटना जो थी वो थी सब्सिस्टेंस क्राइसिस की। जब नेशनल असेंबली वर्साइलेस में कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उसी समय में जो है ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बिल्कुल भी जो है हार्वेस्टिंग के टाइम में जो है फूड क्रॉप्स जो थे वो बिल्कुल डैमेज हो गए थे ही नहीं, और जिसकी वजह से ब्रेड का प्राइस बहुत बढ़ गया था। और चूँकि ब्रेड का प्राइस बहुत बढ़ गया था तो इस सिचुएशन में जो लोग बेकर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीज़ों को जो है एक जगह इकट्ठा करके उसका रेट जो है बहुत बढ़ा दिया। लोग घंटों घंटों लाइन में लगे रहते थे मगर फिर भी वो जो है ब्रेड नहीं खरीद पाते थे। और इसी सब समय में किंग ने जो है अपने ट्रुप्स को भी ऑर्डर दिया कि वो जो है पेरिस में जाएं और लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं उनको डिस्पर्स करें। ओके। When the National Assembly was busy at Versailles drafting the constitution, the rest of France seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowd of angry women stormed into the shop. And at the same time, the king ordered the troops to move into the Paris. The peasants also revolted, fearing that Maynard had hired bands of brigands to destroy their ripe crops. Peasants seized hoes and pitchforks and attacked chataks. They looted hoarded grains and burned down documents containing records of manorial dues. एक तरफ तो जो था कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ था, जिसके वजह से ब्रेड का प्राइस बहुत बढ़ गया था और लोगों को ब्रेड खरीदना उनके लिए पॉसिबल हो गया था। साथ ही साथ जो पीजेंट्स थे उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनके जो फसल जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसको भी जो है मैनर वगैरह जो है उसको जला ना दे, उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। और इस डर से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मैनर्स थे उनका घर जला दिया, उनकी दुकानों को लूटा और उन दस्तावेज़ों को भी जला दिया जिसमें उनके ड्यूज़ के बारे में चर्चा थी। तो महिलाओं जो सिचुएशन था उसमें चाहे पीजेंट्स हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे कॉमन पीपल हो, सब लोग ही नाराज़ थे, इंक्लूडिंग द मिडिल क्लास। तो जहाँ पे सभी लोग नाराज़ थे उस समय जो है लुइस 16 के पास कोई ऑप्शन नहीं बच गया था। जब बेस्टाइल जेल को वहाँ में जब बेस्टाइल जेल को 14 जुलाई 1789 में लोगों ने एक जगह इकट्ठा होकर तोड़ दिया। लगभग 7,000 मेन एंड वुमेन थे उसमें, उसको तोड़ दिया। तो उसके बाद जो है लुइस 16 इतने प्रेशर में आ गए कि उन्होंने अल्टीमेटली जो है रिकॉग्नाइज़ किया नेशनल असेंबली को। The storming of Bastille and the revolt by peasants forced the Louis XVI to recognize the National Assembly.
On 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. Members of clergy too were forced to give up their privileges. Tithes were abolished and lands owned by the churches were confiscated. And as a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. अब ये सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे हर आदमी जो थर्ड स्टेट का था वो लुइस 16 के ख़िलाफ़ था. अगर हम महिलाओं को देखें, वुमेन को देखें, तो वो भी बहुत नाराज़ थे बिकॉज दे वर नॉट एबल टू परचेज द ब्रेड एंड द कॉमन पीपल वॉज नॉट एबल to survive. When the subsistence crisis situation was there, the peasants were unhappy because they feared that the manors may destroy their crops. The educated class of the educated people of the middle class, they were also unhappy because they wanted to end all kind of a privileges. So when in such kind of a circumstances, Louis XVI had no other option except to recognize the National Assembly. Once he recognized the National Assembly, then National Assembly started doing its work. It ended all kind of privileges enjoyed by the nobility and the clergy. Tithes were also abolished and the lands owned by the church were confiscated and then what happened, the government acquired the asset worth at least 2 billion livres. So with this we come to an end of this topic. Thank you.